Hey everybody, this is Anush Srivastav. How are you all? I hope you all are fine and staying home and doing well. So let's start with first question. We will discuss how to find square root of any number. The first question is here, square root of 576. As we know, what are the prime factorization? As we know the definition of prime number, which numbers are exactly divisible by itself or one. जो number one और itself यानी कि खुद से डिविजिबल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं. लाइक 2, 3, 5, 7, 11, 13 and 17 and so on. Now look at first question, square root of 576. How can we find it? First we will prime factors of 576. Now start from 2. Always remember it, always start from 2. So 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 3 3s are 9 and 3 1s are 3. Now these are the prime factors of 576. Now we can write it 2 into 2 into 2 into 2 into 2. 1 2 3 4 5 6. 6 time. 1 2 3 4 5 and 6 into 3. Now how for finding square root we will make pair. So these are the pair. We will take one from here, we will take one from here and we will take one from here. So it will be 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24. So we can say what is the square root of 576? That is 24. Now the second question, most important question, simplify under root 900 plus under root 0.09 plus under root 0.000009. Now as we know, under root 9 is equal to 3. Under root 9 is equal to 3. As we know, square of 3 is 9. So we can say square root of 9 is 3. तो देखिए यहाँ पे ये किसका स्क्वायर लिखा हुआ है, 3 का. तो वी कैन ब्रेक इट लाइक 9 into 100 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 0.09, remove decimal and take 2 zeros in denominator. Similarly here, remove decimal, first write 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, remove decimal and take how many zeros, 1 2 3 4 5 6, 6 zeros, 1 2 3 4 5 6 zeros. Now as we know, square root of 9 3, square root of 100 तो क्या होगा इसका 10 प्लस. अब देखिए 9 का स्क्वायर क्या होता है 3 और 100 का क्या होता है 10. ऐसे यहाँ पे 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3 और इसका कैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट, देखिए 100 100 100 तो यानी कि यहाँ से 10 आएगा, यहाँ से भी 10 आएगा और यहाँ से, यानी कि 1000 बन गया. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/1000. सो वी कैन राइट इट 30 प्लस 0.3 प्लस 0.0. अब देखिए यहाँ पे कितने जीरोस हैं 3 जीरोस. तो डेसिमल कहाँ होना चाहिए 3 डिजिट पहले, तो 2 0 कंसीडर कर लेंगे तो 0.003. वी कैन राइट इट 30.303. This is the correct answer for this question. Now the next question, finding square root of a perfect square by the long division method. This is the second method, long division method. First method as we discussed, prime factorization method, that and this is second method, long division method. So look at here, 7396. सबसे पहले आपको समझना है कि मेथड इसका क्या है, किस तरीके से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड. तो आपको इस तरीके से लाइन ड्रा करना है, सिमिलरली लाइन ऐसे ड्रा करना है और क्या करना है आपको, फ्रॉम राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड, फ्रॉम राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड वी विल मेक द पेयर. तो देखिए पेयर बनाएंगे तो 73 अब किसके नियर अबाउट स्क्वायर होगा, तो देखिए अगर हम 8 का स्क्वायर निकालें तो 64, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 8 के बाद 9 तो कितना 81, तो 81 इज ग्रेटर, सो विल बी टेक 8, 8 8 जा 64.
नाउ सब्ट्रैक्टेड 13 माइनस 4 9, यहाँ से कैरी तो 6 माइनस 6 0। अब जो डिजिट यहाँ पे ली है आपने वही सेम डिजिट लेना, दोनों को प्लस करना है, तो 8 8 16 हो जाएगा। इसको कैरी करेंगे कितना हो जाएगा 96। अब देखिए यहाँ पे 16 लिखा है, यहाँ पे 996, तो 996 किस कंडीशन में बनेगा, इफ वी टेक हेयर 6। अब यहाँ 6 लिया है तो 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 6 36, 3 कैरी, 6 6 36 39, 3 कैरी, 6 1 6 3 9, सब्ट्रैक्टेड 0। तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया 86। सो वी कैन से स्क्वायर रूट ऑफ 7396 इज 86। Now look at next question. Find the perimeter of a square whose area is 6889. अब इस तरीके के क्वेश्चन आपने वर्ड प्रॉब्लम्स देखे होंगे कि क्या दिया हुआ है, एरिया दे रखा है स्क्वायर का और पेरीमीटर निकालना है। तो सबसे पहले यू शुड नो अबाउट द फार्मूला ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। सो एज वी नो, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, अब एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना गिवन है, देखिए 6889 मीटर स्क्वायर। अब हम जानते हैं यहाँ पे कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर, और वी कैन से साइड इनटू साइड, वी कैन राइट इट 6889 साइड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, तो अब आपको ध्यान रखना है कि अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 लिखा है तो वी कैन राइट इट अंडर रूट 2, यानी कि जो स्क्वायर है वो रूट में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे इस तरीके से अगर लिखा है बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो वी कैन राइट अंडर रूट 4। तो देखिए साइड क्या हो जाएगा यहाँ से, अंडर रूट 6889, दिस इज द स्क्वायर रूट। तो अब इसका स्क्वायर रूट किस तरीके से फाइंड करेंगे, सो लुक इट हियर 6889। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड फाइंड करते हैं। तो पेयर कैसे बनाएंगे, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो राइट से देखिए लेफ्ट बना रहे हैं, तो पेयर यहाँ पे बना लिए, ये होगा। अब देखिए किसके नियर अबाउट होगा, तो 7 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो हम यहाँ पे 8 ले लेंगे, तो 8 8 जा 64, सब्ट्रैक्टेड इट विल बी 4। अब 8 8 क्या करना है, सेम दोनों को ऐड करेंगे, तो 8 8 कितना हो जाएगा 16, 89 ऐसे रहेगा। अब देखिए अगर यहाँ पे 3 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 है यूनिट डिजिट, तो 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 1 जा 3 1 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 आ रहा, तो यहाँ पे 3 था तो 3, तो यानी किसका स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 6889 क्या हो जाएगा यहाँ से 83। तो दिस इज द साइड ऑफ स्क्वायर। अब देखिए क्या पूछा गया आपसे, पेरीमीटर। तो एज वी नो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड। साइड कितनी आपने फाइंड की है 83, वी विल मल्टीप्लाई इट, 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 8 जा 32, 33, सो इट विल बी द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, फाइंड अंडर रूट 10, अंडर रूट यानी कि ये सभी अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट 10 फिर अंडर रूट में लिखा हुआ है, ये जो रूट लगा हुआ है सेकेंड रूट, ये अंडर इस वाले नीचे इसके अंडर है, फिर ये इसके अंडर है। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। अब देखिए हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको, इस टाइप के क्वेश्चन को, फ्रॉम राइट हैंड साइड। देखिए 225 लिखा है, तो आपको पता है दिस इज द स्क्वायर ऑफ 220, स्क्वायर ऑफ 15। अब इसको हम, ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 15 है तो इसको प्लस करेंगे इसमें, देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 10 प्लस रूट 25 रूट 108 प्लस रूट 154, और ये किसका स्क्वायर लिखा हुआ है 15 का। अब देखिए यहाँ से इस तरीके से 10 प्लस रूट 25 प्लस 108, अब 108 ये दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 169 आएगा, क्या आएगा 169। और आपको पता है कि 169 किसका स्क्वायर होता है, 169 जो स्क्वायर होता है वो होता है 13 का, तो ये क्या हो जाएगा 13। इस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे, तो 10 प्लस रूट 25, और इन दोनों को प्लस करेंगे आप तो कितना आएगा 8 3 11, कैरी 1, ये 2 हो जाएगा, तो यानी 121, और 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का स्क्वायर होता है। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है 10 प्लस, अब 25 और 11 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। अब यहाँ पे देखिए 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो ये अंडर रूट हो जाएगा 10 और प्लस 6 इट विल बी, और अंडर रूट 16, और 16 किसका स्क्वायर होता है आपको पता है 4 का। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4।
Now move on next question. Square root of number which are not perfect square. ठीक है, अब इस किस तरीके के नंबर, यानी कि जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं, जैसे हम जानते हैं कि कुछ नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड कर सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ नंबर विच आर नॉट परफेक्ट, इसको भी हम क्या करेंगे, बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड ही सॉल्व करेंगे। ध्यान से समझेंगे इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो लुक एट हियर, देखिए 7 एज इट रखना है। मैंने क्या किया था, आपको मूव कहाँ से करना है, राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए अब 7 है तो 7 है यहाँ पे, तो पेयर तो होंगे नहीं यहाँ पे, तो पेयर कैसे बनाएंगे, तो आपको पता है डेसिमल लगाने के बाद जो जीरो है वो आप कितने भी कैरी कर सकते हैं। तो डेसिमल यहाँ लगा लिया और जीरो को इस तरीके से कैरी कर लिया मैंने, ठीक है। अब देखिए 7 जो होगा यहाँ से स्टार्टिंग अगर करेंगे तो मान लेता हूँ कि टू पेयर सभी के बना लिए, ये 2 बना लिए, ये 2 पेयर बना लिए, 2 पेयर और 7 आ गया। तो 7 किसके स्क्वायर के नियर होगा, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। तो अब स्मॉलर तो 2 है ना यहाँ पे, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 3 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ क्या लेंगे 2, 2 2 जा 4, सब्ट्रैक्ट इट, इट विल बी 3। अब डेसिमल यहाँ था तो डेसिमल लगा लीजिए और 2 जीरो एक साथ लेने होंगे आपको। अब एक जीरो नहीं लेना है यहाँ पे, क्योंकि हम स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पेयरिंग की बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 है तो हम यहाँ पे कौन सा नंबर लें, इसको डिविजिबल कर दें। तो अगर मैं 7 लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 47 इंटू 7, 7 जा 49, तो ज़्यादा हो रहा है। तो हम क्या नंबर ले लें, अगर हम नंबर ले लेते हैं यहाँ पे सपोज दैट 46, तो 6 लेंगे, 6 6 जा 36, 3 कैरी 4 6 जा 24 टू 7, यानी कि ये 6 टाइम हो जाएगा। तो 6 टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 276। यहाँ पे देखिए 6 6 जा 36, 3 कैरी 6 4 जा 24, 3 27, सब्ट्रैक्टेड 4, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा 2 और ये कितना हो जाएगा 0, तो 24। फिर ऐसे ही जीरो लेंगे, यहाँ पे कितने टाइम हो गया 6 टाइम। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है, फिर दोनों को प्लस करना है, 6 6 12 कैरी 1 और ये हो जाएगा 52। अब ऐसा नंबर लेना है, अब देखिए 5 5 जा 25 तो ज़्यादा और यानी कि 5 5 जा तो नहीं हुआ, यानी कि 4 जा, तो 524 यहाँ, अगर 4 यहाँ लेंगे तो यहाँ भी, तो 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9, 4 5 जा 20, तो ये कितना हो गया 2096। तो वी कैन कंसिडर इट बाई 4, तो ठीक, तो 4 कितना हो जाएगा 2096, यहाँ पे भी 4 हो गया। तो इस तरीके से आप कंटिन्यूसली फाइंड कर सकते हो। वी कैन से स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज 2.64। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में मोस्टली पीपल क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.9 और अंडर रूट 0.9, मतलब इसको आप स्क्वायर रूट ऑफ 0.9 आपसे पूछा है या अंडर रूट 0.9, दोनों का मीनिंग सेम है। तो आपको फाइंड टोटली क्या करना है, स्क्वायर रूट। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, लोगों से मोस्टली पूछा तो लोग बताते हैं 0.3, बट दिस इज़ नॉट करेक्ट। देखिए क्या करना है 0.9, सेम मेथड अप्लाई करना है आपको। अब क्या करना है, पेयर बनाने, तो पेयर कहाँ से बनाने, राइट हैंड साइड से। तो पेयर बनाने के लिए इसको जीरो बनाना पड़ेगा, तभी तो पेयर बनेगा। अब आप जीरो इस तरीके से लगाते चले जाइए। तो देखिए 0.990, अब ये 0.90, अब 90 कहाँ मिलेगा आपको, 9 का स्क्वायर, यानी कि जीरो डेसिमल लगा था तो डेसिमल लगा लेंगे, 9 9 जा 81, तो ये 81 हो गया। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना बचेगा 9, और यहाँ पे 9 लिखा है तो 9 दोनों को ऐड करेंगे तो ये 18 हो गया। फिर डबल जीरो यहाँ पे ले लेंगे। अब देखिए यहाँ लिखा है 900, तो यहाँ पे कौन सा एक नंबर लिया जाए जिसको डिवाइड करें। अगर हम यहाँ पे 18 5 जा यानी कि 4 टाइम अगर ले लेते हैं, कितने टाइम 4, तो 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 8 जा 32 33, 3 कैरी 4 1 जा 7, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 - 3 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ से कैरी लिया था तो 1, तो यहाँ पे कितना हो गया 4। अब फिर इसी तरीके से सेम प्रोसेस करेंगे यहाँ पे, तो 4 4 8 प्लस कर लेंगे 8 और ये हो जाएगा 1। अब कितने टाइम देखिए 18, तो जितने भी टाइम जाएगा जो भी नंबर आएगा आई थिंक 8 आना चाहिए। तो यहाँ पे जो इसका स्क्वायर रूट हो गया, नहीं अंडर रूट